Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. My name is Lakshita, and I'm faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. Our institute has been serving in this industry for a long time now, and we are preparing students for UPSC, PCS, and other competitive exams. So, we welcome you all to our channel and also to our institute. So, you can enroll in our batches. We have batches for next year also started now, so you can enroll in that, and you can also come and have a free demo classes that we provide for the students who wanted to join our institute. Plus we have bilingual courses and also offline and online batches, so no need to worry if you are not in Noida or Delhi NCR and you want to have to join our course and you want to study from our institute, then you can also join our online batches as well. Okay, so this series is all about a daily current affair analysis. So we'll be discussing the current affairs of today, and we'll note down important points that are important for the exam perspective. Okay, so let's begin. And I hope you are all subscribing, following our channel, and liking our videos. Okay, we are bringing all this for you only. Okay, so let's begin with our topic now. So our first topic is that Green Meghalaya Plus scheme unveiled by CM in Tura. So Conrad K. Sangma, जो कि CM है of Meghalaya, he has launched a scheme that is called the Green. And Green का full form है grassroots level response towards ecosystem enhancement and nurturing. मतलब क्या हम ऐसे रिस्पॉन्स या क्या हम ऐसे चीजें ला सकते हैं जिससे कि हमारा इकोसिस्टम एनहांस हो, उसमें चेंजेस आए और उसकी नर्चरिंग हो, उसकी हम देखभाल कर सके. ठीक है, तो ये जो स्कीम लाई गई है बाय पीएम के सांगमा और हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय. ठीक है, एंड ग्रीन ये नाम है स्कीम का, मेघालय प्लस. ठीक है, scheme in the first week of October in the state. This week only they have launched this scheme. And what's the purpose of the scheme? तो इनका basic purpose है कि वो forest cover, जो कि forest area है मेघालय का, उसको conserve कर सके. Because you know आजकल deforestation has become a major issue because of the advancement, growing infrastructure हो गया, advancement हो गया, growth हो गया, उसकी वजह से हम forest की कटाई करते जा रहे हैं. Whether it be making of highways, बिल्डिंग्स बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, उसकी वजह से फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है. सो बेसिकली दिस स्कीम इज ऑल अबाउट कि कैसे हम इकोसिस्टम को, कैसे हम अपने फॉरेस्ट कवर को बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ को और एनहांस कर सकते हैं. तो दिस स्कीम इज ऑल अबाउट दिस. तो आपको ये ध्यान रखना है अबाउट ग्रीन. Next, Nitish Kumar unveils logo mascot for upcoming Women Asian Champions Trophy. So as you all know, Women's Asian Cup Champion Trophy आने वाली है. तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और यू ऑल नो अबाउट दैट. ठीक है, उन्होंने एक लोगो और एक मैस्कॉट बनाया है फॉर द वुमेन्स एशियन ट्रॉफी 2024. ठीक है, ये कहाँ पे टेक प्लेस करने वाला है? इन राजगीर फ्रॉम नवंबर 11 to 20. तो जो कि टूर्नामेंट होने वाला है, इट विल टेक प्लेस इन राजगीर. इट्स अ प्लेस एंड इट विल टेक फ्रॉम विच डेट 11 to 20th of November. ठीक है, एंड द मैस्कॉट का नाम है गुड़िया. दैट इज इंस्पायर्ड, कहाँ से उसका इंस्पिरेशन लिया गया है? गुड़िया जो टूर्नामेंट का मैस्कॉट बनाया गया है, उसको बिहार की स्टेट बर्ड जो कि स्पैरो है, उससे इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है एंड उसका नाम रखा गया है गुड़िया. ओके, अंडरस्टूड. अब ये क्या दिखाता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं चैंपियनशिप्स को, हम एटमॉस्फेयर ऐसा बना रहे हैं जिसमें कि हम गेम्स, स्पोर्ट्स, उनके एनहांसमेंट में वुमेन स्पोर्ट्स में जाएं. ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं. फिर क्रिएट कर रहे हैं एक एटमॉस्फेयर सबके लिए कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारे एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर और अपकमिंग चैंपियनशिप के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट.
वी शॉट्स 4th Gen मिसाइल टेस्टेड बाय डीआरडीओ। पहली बात आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टाइम टू टाइम डिफेंस रिलेटेड जो भी हमारे बोल सकते हैं कि हथियार होते हैं या फिर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, उनको टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग मिसाइल्स लाते हैं। ठीक है, तो उनको टेस्ट करने का काम किसका होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ ने क्या किया, उन्होंने सक्सेसफुली एक 3 फ्लाइट टेस्ट किया है ऑफ द 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है वी शॉर्ट। शॉर्ट में 4th जनरेशन का है ये फ्लाइट टेस्ट, एंड इसको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बोला गया है, वी शॉर्ट। और ये कहाँ पे टेक प्लेस किया है टेस्ट? एट दी पोखरण फील्ड्स। मोस्टली जो हम देखते हैं ना ऐसे जो मिसाइल्स और ऐसे जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो बैरन या फिर ऐसे लैंड्स पे किए जाते हैं, तो पोखरण उसके लिए एक सूटेबल प्लेस हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वो भी पोखरण फील्ड्स में ही हुए थे। ठीक है, तो ये टेस्ट भी पोखरण में किया गया है एंड फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान ऑन अक्टूबर 2024। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से टाइप का है। पहली बात तो जो भी फ्लाइट टेस्ट करी जा रही है वो किस टाइप की है, ओके, कहाँ पे करी जा रही है और कब करी गई है, एंड इनका क्या शोकेसिंग, मतलब किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद ये जो स्टेप है, ये जो टेस्ट करे जा रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो डिफेंस सिस्टम में एनहांस कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम आगे आगे क्या करते हैं, हम आगे बढ़ के दूसरे कंट्री से भी डिफेंस सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म्स खरीदते हैं। क्या दिखाते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग एक नेशन बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर कोई नेशन हमारी तरफ अटैक की सोचे भी तो उसे पता हो कि हाँ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या है, हम कहाँ तक अटैक कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या वेपनाइजेशन है। ओके, ये हमारे आर्मी या फिर हमारी फोर्सेस को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, एंड ये भी दिखाता है कि जो मिसाइल है उसका कितना प्रिसीजन है, कितनी सही तरीके से वो जहां पे उसको पॉइंट करके फेंका जा रहा है, ठीक है, वो वहीं पे गिरे, वो उसके प्रिसीजन को दिखाता है। एंड रिलायबिलिटी इन द फास्ट मूविंग एरियल टारगेट्स, और कितने रिलायबल है ये जो सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं नए नए एरियल टारगेट्स के लिए उसको। ठीक है, तो वी श्योर्स ये है। नेक्स्ट, DEF Connect 4.0 a step towards indigenous defense innovation। तो डेफ कनेक्ट क्या है 4.0, हमें इसके बारे में जानना है। सबसे पहले जो किसने इसे लॉन्च किया है, किसने इनॉग्रेट किया है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने डेफ कनेक्ट 4.0 को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया है एट द मानेकशॉ सेंटर इन दिल्ली। ओके, इतना समझ आ गया आपको। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डेफ कनेक्ट 4.0 को लॉन्च किया है एट मानेकशॉ सेंटर इन दिल्ली, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाता है हमारे लिए एज ए इंडिजीनियस डिफेंस इन, मतलब खुद का बनाया हुआ, भारत में भारत की चीजों से, भारत के प्रोडक्ट से ही बनाया गया इंडिजीनियस डिफेंस इनोवेशन है ये डेफ कनेक्ट 4.0। एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, कि हम डिफेंस में एक्सीलेंस कर सके, डिफेंस में नई चीजों को अपना सके। डिफेंस इनोवेशन को दर्शाता है इंडेक्स डीओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर डिफेंस एक्सीलेंस और इनोवेशन के लिए इस चीज को लाया गया है। और ये क्या शो करता है कि हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं कोलैबोरेशन और इनोवेशन को डिफेंस इकोसिस्टम की। कैसे हम यू नो प्राइवेट और उनको अपने गवर्नमेंट में कोलैबोरेट करके एक नए इनोवेशन को, डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए कैसे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शो करता है हमारे इंडेक्स डीओ और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन। ओके, नेक्स्ट, Midori Prize 2024 recognizes conservation leaders from Kazakhstan and Peru। सबसे पहले मिडोरी प्राइज क्या है? मिडोरी प्राइज दिया जाता है फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024 ये दिया गया है वीरो विनोनमा फ्रॉम कजाकिस्तान एंड यसबिल ऑगस्टिना कैल्डरिन कार्लोस फ्रॉम पेरू। ठीक है, इन दो लोगों को मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी दिया गया 2024 में फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, किस लिए? फॉर बायोडाइवर्सिटी को वो कैसे कंजर्व कर रहे हैं एंड सस्टेन कर रहे हैं, उस चीज के लिए इन्हें दिया गया है ये अवार्ड, ये प्राइज। ठीक है,
वोरोनोवा जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फॉर द एसोसिएशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी फॉर कजाकिस्तान। वोरोनोवा जो है वो डायरेक्टर रह चुकी है एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी की ही कजाकिस्तान में, एंड हैज लेड एफर्ट्स कि ऐसे एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं, ऐसी चीजें वो लाए हैं जिससे कि वो इकोसिस्टम को बचा के रख सके, रिस्टोर कर सके और प्रोटेक्ट कर सके जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है वहां पे। सेंट्रल एशिया में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, रूरल कम्युनिटीज रहती है जंगलों में, इकोसिस्टम को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए क्या क्या एफर्ट करे जा सकते हैं, उसकी स्टडी करी है वोरोनोवा ने, इसलिए उनको यह अवार्ड मिला है। वहीं कैल्ड्रिन कार्लोस जो है हमारी, ठीक है, जो कि फाउंडर रह चुकी है सुमाक क्वासो इन पेरू में, उनको रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि उन्होंने एक वर्क किया है फॉर प्रिवेंटिंग द डिक्लाइन ऑफ पॉलिनेटर्स। मतलब जो हमारे पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन आपको पता होगा कि जो जैसे हमारी बीज होती है वो क्या करती है, फूल में से बीज को ले जाकर दूसरे फूल या कहीं और पे गिरा देती हैं। इससे क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है जहाँ की दूसरा प्लांट उगता है। ठीक है, तो वो पॉलिनेटर्स का काम करती है एक जगह से दूसरी जगह चीजें ले जाने की। तो एक पॉलिनेटर है हमारी बी हनी रूट, ठीक है, बीज जो कलेक्ट करती है उसको। तो उनके डिक्लाइन को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, जो वो कम होते जा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन, उसको बचाने के लिए कैल्ड्रिन कॉलोस ने स्टडी करी है, उसके लिए उनको ये प्राइज मिला है। ठीक है, और इन्होंने इस स्टडी में हनी प्रोडक्शन को कंबाइन किया है विद द डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, की कैसे जो बीज है, कैसे जो हनी प्रोडक्शन होता है हमारा, वो हमारे इकोसिस्टम में काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीज उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जाएंगी, ठीक है, वो वहां पे पॉलिनेट नहीं होगा, तो नए प्लांट कैसे उगेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी इकोसिस्टम को रिस्टोर कर रहे हैं। अगर हम उनको ही प्रिवेंट नहीं करेंगे, ठीक है, विंड भी हमारा पॉलिनेटर होता है, एयर भी पॉलिनेटर होता है हमारे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, एनिमल्स भी पॉलिनेटर्स के काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं काम करेंगे तो हमारे इकोसिस्टम रिस्टोर कैसे होगा, इस पे स्टडी करी है कैल्ड्रिन कार्लोस ने। अंडरस्टूड? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब है LIC इंक्रीजेस स्टेक इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू 7.10% वाया QIP। तो LIC का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बढ़ा दिए हैं, बूस्ट किए हैं अपने स्टेक को इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो उनके स्टेक थे, जो उनके शेयर्स थे बेसिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जो कि पहले 4.05% थे, उन्होंने उसको बढ़ा के कर दिया है 7.10%। ठीक है, और ये कहाँ बाहर आई है न्यूज, इन एन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन अक्टूबर 2024। एक एक्सचेंज फाइलिंग होता है जहां पे उन्हें बताना होता है किसके कितने शेयर्स हैं वगैरह करके, स्टेक्स हैं, उसमें डिस्क्लोज हुई है इंफॉर्मेशन। दिस इंक्रीज फॉलोज द अलॉटमेंट ऑफ 25.96 करोड़ इक्विटी, शेयर प्राइस रुपीज 57.36 ईच थ्रू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो भी हमारा अलॉटमेंट होता है शेयर का, ठीक है, उसके साथ क्या क्या होता है, इक्विटी भी शेयर होती है, एंड द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्राइस, इसको हम QIP भी बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजिक मूव है LIC का, ये क्या शो करता है, कॉन्फिडेंस इन द बैंक ग्रोथ पोटेंशियल, कि हाँ, इफ LIC अपने स्टेक्स ले रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो उस बैंक का भी कुछ ग्रोथ पोटेंशियल है, वो भी बढ़ सकती है। एंड इट ऑल्सो शोज द स्ट्रेंथनिंग इन बैलेंस शीट, कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है एक आप अकाउंट्स के लिए, ठीक है, अकाउंट्स बैलेंस करने के लिए, ऑडिट के लिए, वो उसमें भी स्ट्रेंथनिंग होगी, और ये लोग ऐसे प्लान्स लाएंगे जो कि कस्टमर सपोर्ट के लिए, कस्टमर्स जो उनके हैं उनके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, और बैंक की ग्रोथ के लिए भी अच्छे होंगे। तो ये LIC का बहुत बड़ा स्टेप है। ओके, नेपाल अपॉइंट्स प्रकाश मान सिंह रॉथ एज चीफ जस्टिस। तो नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने अपॉइंट किया है प्रकाश मान सिंह रॉथ को उनका नया चीफ जस्टिस, कंट्री का नया चीफ जस्टिस। ठीक है, इंडिया में भी जैसे होता है वैसे ही वहां पे भी है। तो नया चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। अब उन्होंने ओथ दी है, ओथ ऑफ ऑफिस देते हैं चीफ जस्टिस को, उन्होंने ओथ दी है रॉथ को एक स्पेशल सेरेमनी में, जो कि शीतल निवास में ऑर्गेनाइज करी गई थी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफिस है। ठीक है, तो आई यू अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने कहाँ पे ओथ दिया, अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में ही उन्होंने उनको ओथ प्रोवाइड करी है। किसको,
Prakash Man Singh Rothko, who is a new Chief Justice of Nepal. Okay, that's all for today's news analysis. Okay, I hope you are liking the session, and we'll meet soon with more such videos. Okay, please do like, share, and subscribe our channel so that we can get a connect with me. Okay, and please comment down below if you have any doubt in any topic, or you want us to discuss any topic. तो आप कमेंट कर सकते हैं about any topic. आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज कि हाँ मैम इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, एंड आई कम फॉरवर्ड विद दैट फॉर यू. ओके, सो आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए, हम तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं. ओके, एंड आई होप you are understanding everything that is being taught. Okay, thank you all for watching the video, and I hope we'll meet soon with more such videos. Okay, thank you, bye bye, take care.